Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel. I'm Vaishali, and as you guys know, FCAT series is just around the corner, and a lot of you have been requesting that, ma'am, please let us know what should be done in last 1 month, and so I'm here to share the same. I know आप लोगों को बहुत इश्यूज आ रहे होंगे, जो चीज़ें पढ़ी होगी 5-6 महीने में वो याद नहीं होंगी, या फिर टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे. That's pretty fine. Happens with almost everybody. It's okay. Last 1 month will decide what is going to happen. Okay, so I'm here to share the most important topics with you, as well as to share what should be the timetable that you must follow in the last month, which will help you to gain good marks or improve your score. Okay, and this is going to be equally helpful चाहे आप 5-6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर लास्ट 1 मंथ में आपने अभी कुछ 10-15 दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट किया. आई नो आप में से ऐसे भी कुछ लोग होंगे, राइट? जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. सो गाइज, आई एम वैशाली. आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 26 in CDS 2018. Not only that, I've been recommended 5 times and have given 100 plus recommendation. That is, आज की डेट में more than 100 of my students have cleared SSB, are right now either in some of the academies or have already passed out and are finally serving in the defense forces. Also, 4,000 plus students have been selected through CDS and FCAT batches of us. So I will be basically sharing what exactly we do in our courses, the smart work technique that we focus upon. आप सबने ये चीज़ तो देखी होगी that even in the YouTube videos, we majorly focusing upon giving less content that helps you in scoring good marks. मतलब limited content के साथ maximum marks score आप कर पाते. How is it possible? So what exactly is this smart work technique? You guys must have noticed one thing that हम YouTube के ऊपर भी current affair videos etc. लेके आते हैं, and all of you say that मैम आपने तो पेपर ही लीक कर दिया. Exactly, questions are coming from this place. No guys, I don't leak any paper. The main thing is that I know from where the questions come. Okay, 20 to 30% of the syllabus basically leads to maximum number of marks, around 70% marks. और अब हमें आखिरी के मंथ में सिर्फ in 20 to 30% areas पे ही focus करना है, so that we are able to score very very good marks through the revision techniques. Okay, and we will be keeping 3 things in mind. The first thing is focus on the previous year questions and the topics that comes in the examination. The second thing is कि don't do PhD. Okay, हमें यहाँ exam qualify करना है. We are not here to gain knowledge. Knowledge gain करनी थी तो school time पे करनी चाहिए थी. अगर करना है तो अलग से कर लीजिए. ये competitive exam है. In competition we need to be very specific, otherwise लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे. Okay, and the third most important thing is that improve on your strengths instead of focusing upon your weakness. Weakness को improve करने का टाइम होता है 5 से 6 महीने. आखिरी के महीने में अगर weakness पे focus कर लिया तो जो strengths है ना वो भी weakness बन जाएंगे and exam qualify नहीं कर पाओगे. Okay, so let us focus on all these things, and without blabbering anymore, let's jump right into the video and let me share what should be the strategy, something that helped me and helped so many students and will help you also. Now let us move on to the mega plan that will surely help you to achieve the marks that you are aiming for your CDS examination. The only thing that you need is कि last month में proper planning अगर होगी और अगर उसे आप execute कर पा रहे हो consistently, there is nobody who can leave you behind in this game and your name will be surely in the list. देखो मैं consistency क्यों कह रही हूँ, because you guys know कि लास्ट के कुछ डेज बचे हैं. ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम की टेंशन होगी, एंड बिकॉज ऑफ टेंशन कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन हो जाती है. इसके लिए हमें फोकस करना पड़ता है. अगर हम 5-6 महीने पहले स्टार्ट करते हैं ना प्रेपरेशन, तो बीच में मूड इधर उधर होता रहता है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो उस टाइम पे इस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. बट अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेन एम्स. द फर्स्ट थिंग इज कि मार्क्स हमें पता होना चाहिए हमें कितने चाहिए हैं. ये बोर्ड्स के एग्जाम नहीं चल रहे कि हमें चाहिए 100% मार्क्स, तो इसी हिसाब से हमें सब कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर मैं आपसे एम की बात करती हूँ, आर एम शुड बी वेरी वेरी क्लियर. 40+ इन द जीएस एग्जामिनेशन. वो आई नो दैट कि आप में से बहुत लोगों को 20 मार्क्स लाना भी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन गॉन आर दोज डेज. अब आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए जीएस में, क्योंकि हम अपना एम बना के चलेंगे 120 मार्क्स ओटीए के लिए. जब जाके हम लोग आराम से बिना मेरिट के टेंशन के विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी ऑल्सो. सो वॉट वी हैव टू प्लान इज कि 120 मार्क्स लाने. आई नो हमारी जो अभी कट ऑफ है 105 के अराउंड रह रही है, लेकिन जब हम 120 मार्क्स का एम बना के चलेंगे, कुछ ऊपर नीचे भी अगर एग्जाम में हो जाता है, सो वी आर एबल टू एटलीस्ट स्कोर 110, 115, राइट? थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ी बहुत मेहनत करके भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बहुत आराम से 80+ मार्क्स लेके आ सकते हो आउट ऑफ 100. ठीक है, बच्चों की सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि इंग्लिश पे फोकस ना करते हुए वो जीएस पे पूरा फोकस डाल देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. क्योंकि
जीएस में तो मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि वो बहुत पढ़ लिया जीएस, पूरे टाइम जीएस ही पढ़ रहे थे, लेकिन इंग्लिश में आ गए मार्क्स 50-60 और उसके बाद आपका एग्जाम होगा नहीं क्वालिफाई किसी भी हाल में, बिकॉज ओवरऑल कट ऑफ तो ऑफकोर्स यू गाइज नो 105 के आसपास जा रही है। तो एम सॉर्टेड रखो कि जीएस में सिर्फ इतनी ही मेहनत करूंगा या करूंगी कि मेरे 40 नंबर आ जाए, मुझे नहीं लेके आने 60 मार्क्स 70 मार्क्स, मुझे नहीं बनना यहाँ पे जीएस में टॉपर, बिकॉज अगर इसमें इतने मार्क्स आ भी गए तो फर्क नहीं पड़ता अगर इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, सॉर्टेड रखोगे ये चीज, एम जो है वो क्लियर रखोगे, मेरे को 40 मार्क्स लाने हैं अपने जीएस में और 80 मार्क्स लाने हैं मुझे अपने इंग्लिश में, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है टाइम डिवीजन। हमारा दिन जो है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि हम लोग अपना फोकस करें। एक तो हम कोई भी नई चीज़ पढ़ें और ये न्यू जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें भी हमें कैसे डिवीजन करना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, होल्ड ऑन फॉर दैट। नाउ द सेकेंड पार्ट दैट वी हैव टू कीप इन आवर डे इज दैट इज रिविजन, बिकॉज रिविजन नहीं करोगे ना जो भी पढ़ा है सब भूल जाओगे। ओके, एंड द थर्ड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, हमने बचपन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो है उसकी प्रेपरेशन करी है, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज, बिकॉज हमें पता नहीं है कि किस तरीके से 4 ऑप्शन अगर हमें गिवन है उसमें से एलिमिनेशन कैसे करना है। ये मैं आपको जब मैंने इनसाइड एनालिसिस भी स्टार्ट किया था 2020 में तब से बता रही हूँ कि एक तो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज बीइंग टॉट इन आवर कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, बहुत ईजी तरीका होता है एलिमिनेशन, इसी के ये मैं पूरे असाइनमेंट्स या फिर जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें एलिमिनेशन हम एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू बेसिकली यूज दिस। ओके, और मैं जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करती हूँ दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस इज कि हमेशा एक चीज पे ध्यान रखो कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम क्या पूछा, बिकॉज हर एग्जाम जो है वो अलग चीजें डिमांड करता है। राइट, सो हमारा जो आखिरी का टाइम है, आखिरी का 1 महीना इस चीज पे जाना चाहिए। ओके, जब तक आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। बिलीव मी ऑन दिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स अहेड। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये भी मैं आपको एक बार समझा दूं कि नए नए टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं, किस हिसाब से पढ़ने हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, स्किप क्या करना होता है सिलेबस में, दिस आई विल एक्सप्लेन यू, एंड कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमारा जो मेन एम है ना ये है कि हमें 100% मार्क्स नहीं लेके आने, हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर बच्चों की मार्क्स जो हैं 105 के आसपास बनते हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या बनती है, कट ऑफ बनती है ना। कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या करना है, जो बच्चे कर पा रहे हैं एग्जाम में वो हमें 100% कर लेना है। ठीक है, मतलब जो हर कोई कर पा रहा है वो तो मुझे करना ही करना है एग्जाम में, और उसके अलावा प्लस 5-6 मार्क्स लाने के लिए मैं कुछ और भी एम करूंगा कि यार मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर मैं फोकस कर लूँ। अब कौन से एरियाज करने होते हैं वो हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और हमें पता चलता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करूँ, कैट की बात करूँ, कैट में क्या आते हैं, 1 लाइनर आते हैं। सिंपल पूछेगा कि ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है, या फिर ये इंसान या फिर ये स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे, सिंगल लाइनर्स। लेकिन जब आती है बात सीडीएस एग्जाम की, सीडीएस में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है, और वो भी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स। ओके, कुछ कुछ में डायरेक्टली आते हैं 1 लाइनर्स, एग्जैक्टली लाइक कैट। और जैसे मैं आपसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करूँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आते हैं बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस, दैट इज नॉट आस्क्ड इन सीडीएस। तो सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए ये 3 एग्जाम है जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल है। आई बात समझ? चलो स्टार्ट करते हैं अब कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं जीएस से। जीएस अगर आप लोग जानो तो टोटल हमारा 6 पार्ट्स में कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन एग्जामिनेशन हर बार सेम नहीं होते, बट ऑलमोस्ट इस लेवल पे आते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसमें से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, कहीं से भी कुछ भी उठ के आता है, और इसमें अगर टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं हाथ लगेगा, टाइम वेस्ट करके बैठ जाओगे और मार्क्स भी नहीं आएंगे। अनप्रिडिक्टेबल सबसे ज़्यादा सेक्शन है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का लास्ट टाइम क्या किया था सीडीएस ने, इस बार लास्ट टाइम करंट अफेयर्स थोड़ी टफ कर दी थी। ठीक है, उसके साथ साथ साइंस में थोड़े से ना एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए थे, और हिस्ट्री बहुत ईजी कर दी थी। तो इसका क्या मतलब बनता है कि हमें कंप्लीटली तो नहीं छोड़ना है, लेकिन यूँ भी नहीं है कि हम अपना पूरा टाइम हिस्ट्री पे लेके बैठे हुए हैं। ओके, हिस्ट्री ऑलमोस्ट एवरी टाइम सीडीएस एग्जाम में टफ ही आती है, अनप्रिडिक्टेबल आती है। तो हमें जो चीज़ फोकस करनी है दैट इज़ कि हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और दूसरी चीज़ आती है ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी जो है ये बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड आती है। जो लोग हिंदू फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली पढ़ लेते हैं, जिनके पास टाइम है इतना कि वो 5-6 घंटे रोज़ लगा के पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास इतना टाइम नहीं रहा है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आखिरी के 1 महीने में आप सोचो यू विल बिकम द रोबोट एंड आप सब कुछ याद कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सबसे अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन, और सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, जहाँ से पता है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और बहुत ईजी मार्क्स गेन कर सकते हो, दैट इज साइंस, पॉलिटी। ठीक है,
और करंट अफेयर्स। ये ऐसे सेक्शन हैं जिसको पढ़ लिया, ये इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक बेस है। आई बात समझ? उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। गाइस इकोनॉमिक्स आती है बहुत मतलब करंट बेस्ड आती है। पहली बात, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के, और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक्स के कुछ ही सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं रही है 11th एंड 12th में, गाइस प्लीज़ भूल जाओ इस सब्जेक्ट को, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि थोड़े बहुत आप गवर्नमेंट स्कीम्स कर लो। ठीक है, उसके अलावा आप 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद बजट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको समझ, लेकिन उसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स लेके बैठे नहीं हो पाएगा। जिसके पास भी 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी, बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 10th बेस तक आता है, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो 70% क्वेश्चंस जो हैं आपके साइंस में दे कम अप टिल द लेवल ऑफ 10th, एंड आई होप आप सबके पास 10th तक तो साइंस ही सबके पास, राइट? सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये 70% क्वेश्चन आप कहीं पे भी छोड़ के नहीं आ रहे हो। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से तो आप आराम से साइंस में 27 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तो इतने ईजी आते हैं कि आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड साइंस की बात करूँ तो मैं काफ़ी बार ऐसा होता है कि 30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, सो इसमें से आप 25 के आसपास सोच के चल सकते हो कि आपके हो जाएंगे सही। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ पॉलिटी। भाई पॉलिटी भी बहुत आसान आती है, मुश्किल से 8 से 9 टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं अच्छे से कंप्लीट, और यहीं से आपकी मैक्सिमम आते हैं, मतलब 80 to 90% आप मान के चलो कि यहीं से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिर्फ 8 से 9 टॉपिक करने हैं, किसी को भी पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फ्यू सेक्शन दैट आई टेल यू। ओके, सो यहाँ से मार्क्स गेन करो, और उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़, दैट इज करंट अफेयर्स। गाइज एक्सट्रीमली ईजी, और इस करंट अफेयर्स का तो मैंने आपका पूरा का पूरा संभाल रखा है, तो आप टेंशन मत लो। जस्ट कवर वॉट एवर आई एम कवरिंग फॉर CDS करंट अफेयर्स ऑन यूट्यूब। आई गारंटी यू वन थिंग, यहाँ से आप 70% क्वेश्चन एज इट इज़ देखोगे, और जो चाहते हैं कि उनके 100% क्वेश्चन सही हो जाएं, यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर मैगजीन। इस मैगजीन में सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। लास्ट टाइम भी एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे, और ये मैं एक 250 करंट अफेयर्स की मैगजीन रिलीज कर रही हूँ। इसमें से आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो इसी मैगजीन से आएंगे। 250 क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में भी होगा और PDF फॉर्मेट में भी मिलेगा। सो यू कैन गो एंड चेक दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के 250 क्वेश्चन फॉर CDS टू 2022। और अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो या CAPF के लिए, तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली फ्रूटफुल फॉर ऑल दीज 3 एग्जामिनेशन, बिकॉज सेम लेवल के एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिसलेनियस सेक्शन, जहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो व्हाट आर दीज मिसलेनियस सेक्शन? सो मिसलेनियस सेक्शन में आता है जैसे कि सेंसस है। ठीक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेस मिशन आते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं। सो दीज आर द एरियाज जहाँ से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो वाई यू डोंट डू दीज थिंग्स जहाँ से वेयर यू नो क्वेश्चन आना ही आना है गाइज? वाई यू डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि मिसलेनियस क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो we are easily able to get at least 50+ क्वेश्चंस राइट। ठीक है, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स अपने मिला के। उसके बाद क्या हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कंप्लीटली छोड़ देनी है? बिल्कुल भी नहीं। जिनके पास बैकग्राउंड रहा है अपना आर्ट सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ मेक श्योर कुछ ना कुछ आप कवर करके जाओ, और टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन कि मैं बुक कंप्लीट कर लूँ, मैं PhD कर लूँ सब्जेक्ट्स में, नहीं, सिर्फ टॉपिक्स पे फोकस करो जो हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप लोग टच नहीं करोगे जिनके पास सब्जेक्ट नहीं रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द पीपल। एंड अगर आप 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, 40 मार्क्स लाना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, जबकि आप कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी आ रहे हो हर सब्जेक्ट में उसके बाद भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे सॉइल है, हर बार क्वेश्चन आएगा। कॉपन क्लाइमेट है, यू विल ऑलवेज सी अ क्वेश्चन कमिंग आउट फ्रॉम दिस। सोलिस्टिस से 100% क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमेशा ओशन करंट का क्वेश्चन आता ही आता है कि ये वाला कौन सा वार्म करंट है, ठीक है, कौन सा कोल्ड करंट है, तो इनके नाम याद कर लो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में आप सब लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, लेंस का डायग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हर बार इधर से क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल मिलेंगे, एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री मिलेंगे। प्लांट, अगर हम बायो की बात लेते हैं तो प्लांट रिप्रोडक्शन से पक्का क्वेश्चन आता है। सिस्टम जो है ना, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछ, जैसे कि हार्ट से हर बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंसेस क्या है ये पूछते हैं।
हर बार साइंस में डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर फिजिक्स में मिरर या लेंस की इमेज फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में पूछ लेंगे कोई भी एक सेक्शन, पैनक्रियाज से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, गॉल ब्लैडर से पूछ लेंगे, ठीक है। हार्ट में वॉल्स पूछ लेते हैं, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। बस दीज आर द सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अगर मैं आपसे बात करूँ पॉलिटी की, सो पॉलिटी में प्रेसिडेंट, ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देयर आर टोटल 8-9 टॉपिक्स ओनली। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपल सा एक काम करना, ये हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे जाना, ओपन दीज, ओके, और इसमें आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। जस्ट सी व्हाट इज द टाइटल, और उन टाइटल या फिर टॉपिक्स को अपने हिसाब से, जो भी आप बुक्स कर रहे हो, चाहे आपने 5-6 महीने प्रेपरेशन करी हो या ना करी हो, आप रिविजन कर रहे हो, जस्ट सी द टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स को जिस भी बुक से आप कर रहे हो उसे अच्छे से कवर अप कर लो। दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ये सारे के सारे वीडियोज उठा के देख लेना, इसमें आपको मिल जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपके पास अभी कम टाइम है, यू डोंट हैव दिस मच टाइम कि आप स्पेसिफिकली बुक्स उठा के देखो, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स डायरेक्टली, रेगुलरली हार्डली 2 to 3 वीडियोज आर देयर, देख लो, और इतना टाइम मिल जाएगा रिविजन का भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी, और क्वेश्चन सारे यहीं से डेवलप होने। 40+ मार्क्स मेरी आपसे गारंटी है। और इसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आप जाओगे कोर्स के थ्रू तो आप देखोगे कि डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे कवर करने के बाद, जैसे मैंने पॉलिटी कवर कराई, उसके बाद मैं साइंस कवर करानी शुरू कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, बीच में एकदम से एक दिन मैं आपको पॉलिटी रिविजन का दे दूंगी। क्यों? बिकॉज इमीडिएटली पॉलिटी से आपका जो दिमाग था वो हट चुका था, साइंस पढ़ रहे थे। अब आपको क्या चाहिए, वापस से पॉलिटी की रिविजन एक बार चाहिएगी, अदरवाइज सब भूल जाओगे। और जो ये पॉलिटी की या फिर साइंस की एक्सेट्रा रिविजन वीडियो है, मैं हर सब्जेक्ट की एक एक रिविजन वीडियो डाली हुई है। मुश्किल से 2 घंटे या 1.5 घंटे की ये वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो एक दिन आपको पूरा दिया जाएगा रिविजन के लिए। इसमें पूरी की पूरी पॉलिटी कवर्ड है। और आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट टाइम एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस केम फ्रॉम दीज जस्ट रिविजन वीडियो, जो कि पॉलिटी की एक रिविजन वीडियो थी या हिस्ट्री की एक रिविजन वीडियो थी। इसमें से आपको डायरेक्टली टोटल 25 क्वेश्चन सिर्फ रिविजन वीडियो से मिले, जो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की थी। कैन यू बिलीव दिस? एंड लेट मी शो यू, ओके। ये देखिए लास्ट टाइम क्वेश्चन जो आया था, this was the question, this was taught in what, this was taught in your revision video, this was the question taught in revision video, this was the question taught in revision video, this was the question taught in revision video। ध्यान से देखो all these question, मैंने अभी बताया ना सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो पढ़ा रखा था रिविजन वीडियो में आप लोगों को। ये देखिए इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो पढ़ा रखा था आप लोगों को, ठीक है, एज इट इज़। ये देखिए, आई टोल्ड यू कॉपन स्कीम बहुत ज़रूरी है, ये देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखा है, लास्ट टाइम भी आया था। दिस इज योर हिस्ट्री का क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। या तो कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, वहाँ के वोल्केनोस के बारे में पूछ लेंगे, लिटिल अंडमान एक्सेट्रा, उनके आइलैंड्स के बारे में पूछ लेंगे, कार निकोबार पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर चैनल पूछ लेंगे। हर बार क्वेश्चन इज देयर, एंड दिस वॉज ऑल्सो टॉट इन योर लास्ट मिनट रिविजन वीडियो। दिस वॉज ऑल्सो टॉट, ये आपका पॉलिटी से था, एंड मैनी मैनी मोर जस्ट लाइक दिस। 25 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ रिविजन वीडियो से कवर्ड थे। सो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नो व्हाट टू स्टडी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पता चलता है, टॉपिक्स के थ्रू पता चलता है, इन लोगों को इन दोनों चीज़ों को लेके बैठो, एंड दैट इज ऑल यू नीड। और ऊपर से हमारी तो हेल्प है ही, यू कैन एनी टाइम गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड उन सिर्फ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये आप लास्ट टाइम का भी देख सकते हो, लुक एट द क्रैश कोर्स रिव्यू ऑफ आवर्स। Exactly same things were there from the crash course itself and from the YouTube videos. This is the crash course का again, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि GS section was there from the course itself. Okay, these are the reviews. You can just check it out. Even on Instagram, you'll get an idea how amazing the course is, and it will surely help you to at least improve your marks. Even if you have been studying 5-6 महीने कहीं से भी पढ़ रहे थे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे थे, लेकिन अगर आपको cherry on the top of your cake चाहिए, if you want some extra marks, you can go for the limited sources and maximum revision वाला जो हमारा fundamental motive है, you can go through that and it will surely assist you, okay? ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज दैट इज अवेलेबल। इसमें 5 टेस्ट आपको सिर्फ 249 में मिलेंगे। यू विल गेट एन आइडिया आपका क्या रैंक चल रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस CDS क्रैश कोर्स। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्लस इसमें पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपकी कवर्ड है। उसके बाद जो मैंने आपको 250 क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, वो भी इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपकी जो मंथली मैगजीन है वो भी इस चीज़ के अंदर कवर्ड है। सो व्हाट एल्स डू यू नीड? आई गेस एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। टाइम टेबल आपका इंक्लूडेड है, आपको एक पूरा सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। और बेस्ट पार्ट कि ये जो कोर्स है 7th को स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट 50 पीपल के लिए 500 ऑफ है डायरेक्टली। ऑलरेडी 500 ऑफ चल रहा है, उसके अलावा 500 ऑफ एक्स्ट्रा मिलेगा हु आर फर्स्ट 50 एंड टेक दिस पर्टिकुलर कोर्स, ओके।
आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस सेक्शन से कुछ ना कुछ टेक अवेज पक्का मिले होंगे। टेक अवेज जो हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ कि कुछ सेक्शन जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, पॉलिटी है ना, अपना साइंस है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, इनमें हमें क्या करना है, वी हैव टू डू वेल इन दिस। ओके, कुछ सेक्शन हैं जिन्हें हमें मॉडरेटली करना है, जैसे कि जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार चीज़ रिपीट होती है, मतलब जो सब लोग कर पा रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोड़ के आ रहे हो एग्जाम में। इसलिए हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कवर कर रखी है, बट कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि वी कैन कंप्लीटली लीव। हमें क्रोनोलॉजी याद करनी है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है, क्रोनोलॉजी आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, और हिस्ट्री जो है, अगर हम सीडीएस की बात करें, मैक्सिमम फोकस जो है वो मॉडर्न की तरफ ही रहता है, नेशनल मूवमेंट्स की तरफ रहता है, या फिर कोई भी जैसे न्यूज़पेपर या फिर सोशो रिफॉर्म मूवमेंट थी, वो किसने इनिशिएट की, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, मतलब क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नहीं छूटने चाहिए। ऐसे ज्योग्राफी के अंदर सॉइल वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, सो कुछ सेक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है उनको मॉडरेटली करेंगे। और जो तीसरी चीज़ है जिन्हें हमें कंप्लीटली छोड़ना है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन्हें हमें कंप्लीटली छोड़ देना है। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो इसे छोड़ दो, नहीं तो पीएचडी करने ही बैठ जाओगे और एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जो कि नहीं है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एशियन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, वोंट बी दैट यूजफुल। ऐसे ही आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो मेडाइवल इंडिया में, नहीं है यूजफुल। बहुत ज़्यादा अपनी करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ गए हो ज्योग्राफी के लिए पिछले पता नहीं 5-6 महीने की, तो इट्स नॉट यूजफुल। मतलब टाइम इज टू बेनिफिट रेशो देखो, कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और क्या उससे मेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम में। क्योंकि मुझे यहाँ पे समझने नहीं बैठना, अगर समझना था तो स्कूल में पढ़ते। ठीक है, आज की डेट में क्या चाहिए, समझना नहीं चाहिए, एग्जाम का पर्सपेक्टिव चाहिए, उसमें क्या आता है और बस सीधा बात है याद करो और एग्जाम में उसको क्लियरली मार्क करो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको ये भी पता होगा कि स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देना है ना, अपने जितनी भी वीकनेसेस हैं उसे छोड़ देना है, और स्टडी करना है लिमिटेड, और रिवाइज करना है मैक्सिमम, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन चीज़ों पे हमें क्या करना है, लास्ट के महीने पे ध्यान देना है, जब भी एग्जाम आपका क्वालिफाई हो पाएगा। ओके, अब एक बार बात कर लेते हैं कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से हम ये टॉपिक्स जो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप मेरे क्रैश कोर्स में से टॉपिक्स देखोगे, उसमें से क्या क्या करना ज़रूरी है। देखो, इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत से कर लेना, कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स देके पता चल जाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट फॉर्मेशन है, ठीक है, पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, सिर्फ उतना कवर करना है, सब कुछ मत कवर करने बैठना। ओके, ज्योग्राफी की ये 4 बुक्स है, इनमें से आप अभी के लिए, बिकॉज लास्ट मंथ है, ये 2 कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। सिर्फ 11th की जो ये 2 बुक्स है उन पर मेजर फोकस कर लो, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आते हैं। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 60 to 70% क्वेश्चन यही 2 बुक्स कवर करती हैं। ओके, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम जा सकते हो, स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक। लेकिन स्पेक्ट्रम में जो आप पीछे की तरफ देखोगे समरी गिवन होगी हर चैप्टर के बाद, सो उस समरी को एक बार अच्छे से देख लेना। और पीछे की तरफ लास्ट में जो है ना कुछ टेबल्स अवेलेबल हैं जिसमें न्यूज़पेपर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह वगैरह गिवन है, तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देख लेना। अगर आप वो पीछे की भी ऑलमोस्ट 40-50 पेजेस कर लेते हो ना, वो भी काफी हेल्पफुल रहेंगे, यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। एंशिएंट वगैरह में भी बार चेक कर लेना कौन कौन से बुद्धिज्म वाले सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ उनको कवर कर लेना। मेडाइवल बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन जो सेक्शन पूछते हैं एक बार चेक करके और सिर्फ उसी को कवर करना। ठीक है, आई होप यू वुड हैव गॉट एन आइडिया अबाउट दिस। अब हम बात कर लेते हैं और चीज़ों की, दैट इज इंग्लिश। ठीक है, जिसमें हमें लाने हैं अपने अराउंड 80 मार्क्स। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम टेबल की, व्हाट शुड बी द टाइम टेबल दैट वी शुड फॉलो। ठीक है, सो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी इंग्लिश की, कुछ सेक्शंस हैं जहां पे टाइम वेस्ट करना आज की डेट में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज टाइम इज़ टू बेनिफिट रेशो वाली बात है कि अगर मैं इतना टाइम लगा रहा हूं तो क्या मुझे टाइम के हिसाब से कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर सीएपीएफ के पेपर, एनडीए के पेपर, सीडीएस का पेपर और आपके जो रेलवेज बैंकिंग वगैरह क्वेश्चन होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सिर्फ वो कवर कर लेना। दैट विल बी इनफ हेल्पफुल कि आपके एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। और बेस्ट पार्ट एंटोनिम सिनोनिम का सीडीएस में ये है कि सेंटेंस फॉर्म में आता है, तो बहुत इजीली आप 2 से 3 चीज़ों को क्या कर सकते हो, नल एंड वॉइड कर सकते हो। और आराम से अगर 2 ऑप्शन बचते तो 50-50 रेशो बचती है कि क्या पता क्वेश्चन सही भी हो जाए गलत भी हो जाए, है ना। सो उसमें आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ रिस्क मत लेना। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस तरीके से करो। उसके बाद आता है हमारा रीडिंग सेक्शन, जो कि कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रीडिंग बेस्ड है, मतलब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो एसपी बख्शी एक बुक है जो मैंने खुद भी करी थी एंड वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी। आई वाज एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो व्हाट यू कैन डू इज कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इट विल बी ग्रेट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद आते हैं
स्पॉट द एरर, ये एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा सा टफ पड़ता है सीडीएस के लिए, और इसके लिए आप ग्रामर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ग्रामर में ना कुछ रूल्स होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सो रूल्स चेक करो कौन कौन से रूल्स जो हैं काफ़ी बार सीडीएस पूछता है, उन्हीं रूल्स पे फोकस करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब देखो आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आपको सेक्शन जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस जो हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर्स उठाओ, या फिर एसपी बख्शी में ना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन गिवन है, सिर्फ उतने कवर कर लो, दैट्स इट। ऑल्सो इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है इनसाइट एसएसबी पे, और उसकी जो लाइव सेशंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 9th से। तो अगर आप चाहते हो यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सारे इंपॉर्टेंट एरर्स वाले उसमें कवर्ड है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, और आपके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस उसमें कवर हो जाएंगे, मतलब बेसिक्स विल बी क्लियर्ड, ओके। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स विल बी गिविंग यू द टेस्ट ऑल्सो, बट ये है कि एसपी बख्शी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना विल बी क्वाइट हेल्पफुल। बेसिक्स क्लियर करने के लिए यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, ओके। और उसमें बहुत लिमिटेड वीडियोस है, सो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें कि रीडिंग सेक्शन जो है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैक्स टू मैक्स, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और ये बहुत ईजी सेक्शन है, ठीक है। और जो आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन छोड़ के आने हैं, एक तो अपने एरर में छोड़ देना जो चीज़ आपको छोड़ के आनी है, बिकॉज ये वाले सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत आराम से, मतलब देखो अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आंसर है, क्या वो आप नहीं कर सकते? बचपन वाले क्वेश्चन है यार, स्कूल में होते थे छोटी क्लासेस में, है ना, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। एंड जो एरर वाले क्वेश्चन हैं, और उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट एंटोनिम सिनोनिम, यहाँ पे आप सोच के चल सकते हो कि अगर मैंने चलो 5 से 6 क्वेश्चन भी अपने छोड़ दिए, इट्स फाइन, ओके। और हमें मैक्सिमम ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे रखना है कि हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके आए इंग्लिश में जिसमें हम 100% श्योर हैं, या फिर हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं एंड वी आर एबल टू, बेसिकली 2 ऑप्शन जिसमें हम कंफ्यूज हैं और उसमें से एक हम लोगों ने इंटेलिजेंटली गेस किया है, ठीक है। गेस वर्क शुड बी इंटेलिजेंट, नॉट डम्प, ओके। और अगर आपने ये चीज़ फॉलो आउट कर ली कि आपने वेस्टफुल चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके मैक्सिमम फोकस अपने रीडिंग सेक्शन पे रख के और अपना ग्रामर बेस इंप्रूव करके अगर आप करते हो सॉल्व, तो 80 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी स्टूडेंट के 80 मार्क्स सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाते क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते हैं ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम आते नहीं, और जो और रीडिंग सेक्शन था, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकते थे, वो आप करके नहीं आते हो, ठीक है। इसके लिए एक और चीज़ बोलूँगी, एसपी बख्शी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस, एनडीए, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से आप अपने आप को ईजिली एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगी टाइम टेबल। जो टाइम टेबल है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि देयर शुड बी सम स्पेस रिविजन। तो जो मैंने टाइम टेबल बना रखा है वो बहुत सही टाइम टेबल है फॉर द कोर्स। आप एक काम कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम इनसाइट एसएसबी ऐप। वहाँ पे आपको एक ना फ्री सेक्शन मिलेगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना इसे और अपना फॉलो आउट कर लेना। आप देखोगे जैसे मैंने अगर ज्योग्राफी करा रखा है, मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कराई, फिर मैंने ज्योग्राफी की रिविजन डाली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। सो वाई इज दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव लर्नड, और आप उसे भूलो ना, ओके। एंड देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो हर सब्जेक्ट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार मैं आपके लिए ला रही हूँ। हमेशा मैं सिर्फ करंट अफेयर्स कराती थी, दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं आपको और भी चीज़ में हेल्प करूंगी, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू गेट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एंड माई टीम ऑफ कोर्स, वी आर गोइंग टू गेट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. There will be a date provided and a timetable provided to all of you guys. This will help you to boost your score, will help you to revise, and will help you to make understand क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो वेरी वेरी बिग सरप्राइज दिस टाइम, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑन यूट्यूब टू स्कोर गुड मार्क्स. सो प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो जॉइन द क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू होल्ड on Insight SSB YouTube channel, and other subjects else than current affairs also we'll be covering. And also आपके लिए English के भी कुछ काफ़ी अच्छी classes आने वाली हैं on Inside SSB YouTube channel. So stay tuned for all of this, and we are coming up very very soon with lots and lots of important content for you guys on the channel. As you guys know कि मैं बहुत कम videos डालती हूँ. I mainly focus upon the best content, right? The crisp content, and the crisp content will be provided to you this time also on Inside SSB YouTube channel. Make sure you stay tuned, make sure you tell your friends also, and let us start preparing. आखिरी का महीना एकदम जोश के साथ हम इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, and I'm very sure that I'll see your name in the list. And make sure that if you want to go for the crash course, download Inside SSB app right now and be in those first 50 so that you can get 500 off at least, okay? All the best, keep working hard, and I'm very very sure that you guys will be there in the list.